Now in today's lecture series, I will discuss the fourth type of numericals, the conversion of the system of units. Okay? Now since, what are the different system of units? Let me first tell you about that. The different system of units, they are nothing but the units of length, mass and time. There are four different system of units. Okay, sirs? And the first system of unit is the FPS system. Okay? The second system of unit is the CGS system. The third system of unit is the MKS system. And the fourth system of unit is the SI system. Okay? Now take a look on the whiteboard. The different system of units. The first one is the FPS system. Now what is this FPS system? In the FPS system, the length is measured in foot, the mass is measured in pound, and time is measured in second. Okay? In the CGS system, the length is measured in centimeters, the mass is measured in grams, and time is measured in second. Third one, the MKS system. In MKS system, the length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. Now, the fourth one. The fourth one is called the SI system of unit. Now, what is this SI unit of? What is this SI system of unit, and what is special about it? All over the world, it is that system which is used all over the world. The scientists from all over the world, whenever they are going to talk about any physical quantity or they discovers anything and they have to do the measurement, then they will measure, they will do the measurement in this system of unit, in the SI system of unit. Okay, sirs? MKS system and the SI system, they are one and the same thing. That is, in SI system, again, the length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. Okay? Note it down, sirs. Done? Now, sirs, let me talk about your lower class mathematics, where you were taught the conversions of, say, kilogram to gram, meter to centimeter, like that. The same thing is to be done over here. Okay? But since in our physics, we have to talk about a physical quantity, and this physical quantity will have a यूनिट, और बेटा उस यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं. लोअर क्लासेस में तो सिर्फ एक ही यूनिट था, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो. लेंथ के यूनिट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो. चलिए पहले इस लोअर क्लास की मैथमेटिक्स का एक रिव्यू लेते हैं. लेट अस सपोज दैट आई एम हैविंग अ बॉडी, आई एम हैविंग अ स्फीयर, and the mass of the sphere is suppose say 3 kilogram. I am saying that the mass of the sphere is 3 kilogram. Okay, sirs? अब सिर्स अगर हम स्फीयर का मास मेजर करते हैं और उसे डिफाइन करते हैं किसी और सिस्टम के अंदर, लेट अस सपोज आई कैन से दैट द मास ऑफ दिस स्फीयर which was say 3 kilogram, it can also be written as say 3000 grams. Okay, clear? अब सिंस अगर बोले कि द मास ऑफ द स्फीयर वाज 3, सिर्फ ये बोले, यूनिट की बात ना करें, द मास ऑफ द स्फीयर इज 3, we can also say that the mass of the sphere is 3000.
The mass of the sphere is 3, the mass of the sphere is 3000. बात अधूरी है, इनकम्प्लीट है. तो स्टूडेंट्स कंप्लीट कैसे करते हैं? We can say that the mass of the sphere is 3 kilogram. We can also say that the mass of the same sphere can be said to be 3000 grams. तो मतलब स्टूडेंट्स 3 किलोग्राम और 3000 ग्राम एक ही बात है. मतलब हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मास की बात कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर स्फीयर की बात कर रहे हैं. तो हुआ क्या कि जब हमने यूनिट को बदला, यूनिट के बदलते ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू थी फिजिकल क्वांटिटी की, वो बदल गई. क्या क्वांटिटी ऑफ मैटर स्फीयर का जिसको मास बोला था, क्या वो बदला? भाई मास आप किलोग्राम में डिफाइन करिए या ग्राम में डिफाइन करिए, स्फीयर का तो जो मास है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो तो उतना ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा. तो स्टूडेंट्स लोअर क्लास की मैथ्स से क्या समझ आया? लोअर क्लास की मैथ्स से समझ आया कि अगर हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो पक्का डिफर करेगी. ठीक है, क्लियर? तो अब हमारी फिजिक्स में ये तो समझ आ गया लोअर क्लास की मैथ्स से कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो डिफरेंट होगी. बेटा क्या डायमेंशनल फॉर्मूला डिफर करेगा? फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम के अंदर? भाई किसी एक सिस्टम के अंदर मेजरमेंट कर लिया, किसी दूसरे सिस्टम के अंदर मेजरमेंट कर लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, डिफरेंट है, समझ आती है बात? क्या डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स द बेसिक of this conversion of the system of units is that the dimensional formula of the physical quantity remains unchanged whenever the physical quantity is defined in any system of unit. Okay, students? Clear? So it is a key idea which we are going to use over here. Got it? And writing it on the whiteboard, note it up. It is the illustration, students. Copy it. Okay? Now in this illustration I must tell you one more thing. देखिए बेटा, ये जो 3 है इसको क्या बोलेंगे? What is it? It is say the numerical value. Let us call this as N1. बेटा किलोग्राम. Let us suppose say it is the first system of unit and I am giving it the name say U1. This 3000 gram. It is the numerical value. Let us call this as say N2. And this gram is say the other system of unit and I am calling it as U. क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात समझ आ गई? तो बेटा N1 क्या होने वाला है? न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाला है फिजिकल क्वांटिटी का. When the system of unit is U1, N2 will be the numerical value of the same physical quantity when we are using another system of unit say U2. तो यहां पर क्या करने वाले हैं? स्टूडेंट्स गिवन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आपको देगा in any particular system of unit and you have to write or you have to calculate its numerical value in some other system of unit. Got it, sirs? Okay? मतलब N1 मालूम होगा, U1 मालूम होगा, U2 बताया जाएगा जिसमें कैलकुलेशन करनी है, N2 कैलकुलेट करना होगा. Got it? नोट कर लें इसको. Done? So friends, the key idea which we are going to use is, the key point which we are going to use it, which we are going to use to do the calculations is the dimensional formula of the physical quantity is same in the different system of units. That is, friends, whenever you are talking
about the physical quantity in any system of unit, okay, the dimensional formula of that physical quantity, it remains unchanged whenever the system of unit is changed. Got it? Note it down, please. Yes, friends, done? Now, sirs, I am giving you the stepwise algorithm first of all in general. Note it down. And since we are going to do the calculation according to the algorithm. Okay? ठीक है? Now, in the first step, what you have to do? We have to write the dimensional formula of the physical quantity. We have to write out the dimensional formula of the physical quantity. Let us suppose the physical quantity symbolically is denoted by, say, Q. Okay? And its dimensional formula is something. Suppose, say, m raised to power a, l raised to power b, and t raised to power c. Got it, sense? Okay? This a is the dimension of mass, this b is the dimension of length, and t is the dimension of time. ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं. For example, if suppose we are talking about, say, force, then the dimensional formula of force is mlt minus 2. Clear? The dimension of m is 1. ठीक है बेटा? The dimension of L is 1. The dimension of T is minus 2. तो अगर हमने यहाँ पे बोला कि ये अगर एक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो M का मतलब 1, B का मतलब 1, C का मतलब minus 2. समझ आ गई बात? स्टेप 1 क्लियर हो गया? हो गया? Now, स्टेप 2. बेटा स्टेप 2 में क्या होगा? डाटा होगा. आपको बोला गया होगा कि you had to convert this physical quantity from this given system of unit into some other. Okay? तो यहां पर डाटा होगा. डाटा में आपने क्या करना है? You have to identify N1, U1 and U2, and this N2 is asked. Clear? अब बेटा N1 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है. N1 न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है. ठीक है? अब ध्यान से देखिए बेटा U1 को कैसे लिखना. Since कोई भी अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट होगा तो बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम दोनों डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट होने वाला है. तो सिंबॉलिकली U1 को कैसे लिखना है? वी आर गोइंग टू राइट दिस एज M1 L1 T1. बेटा डायमेंशंस तो चेंज नहीं होंगी. क्लियर? U2 को कैसे लिखना है? ध्यान से देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट डिफरेंट है, डायमेंशन सेम है. डायमेंशंस, मास, लेंथ और टाइम दोनों की सेम है. डिफरेंट क्या हुआ? डिफरेंट हुआ बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया था कि द मास ऑफ द स्फीयर वाज 3 किलोग्राम. ठीक है? इसको हमने कैसे लिखा था? इसको लिखा था 3000 ग्राम. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास पहले वाले केस में इट वाज किलोग्राम, सेकंड वाले केस में इट इज ग्राम. ठीक है? तो जब लिखेंगे यहां पे तो M1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? से 1 किलोग्राम. M2 का वैल्यू क्या लिखेंगे? से 1 ग्राम. ठीक है? तो इलस्ट्रेशन दूंगा उसमें क्लियर होगा इसको लिखना कैसे है. तो बस सिर्फ करना क्या है,
कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम को डिफरेंट रखना है, डायमेंशन सेम रहने वाली। n2 पूछा जाएगा, n1 गिवन होगा, u1 गिवन होगा, u2 गिवन होगा। गॉट इट सर? सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। देन इन द थर्ड स्टेप व्हाट यू कैन से, in the step third we have to say that the physical quantity say q, it is n1 u1, it should be equals to n2 u2। जैसे इलस्ट्रेशन में लिखा था हमने, मास m was equals to 3 किलोग्राम equals to 3000 ग्राम। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? नोट कर ले इसको, क्योंकि सोर्स मुझे मिटाना पड़ेगा। डन। Now comes the step fourth. In the step fourth, what we are going to do, बेटा यहां पर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगे। You have to do the calculations. इससे पहले जितने 3 स्टेप्स थे कोई कैलकुलेशंस नहीं थी, सिर्फ बेसिक्स थे। So friends, to calculate N2, we are going to use this. This N1 U1 is equals to N2 U2, and this N2 is written as say N1 multiplied with U1 by U2. Okay? बस यहां पर कैलकुलेशन करनी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ा सिंपल काम। देखिए कैसे। This N2 is written as N1 जो कि गिवन था, U1 को कैसे लिखना है और U2 को कैसे लिखना है? M1 डिवाइडेड बाय M2 लिखना है। U1 बाय U2 था ना, M1 L1 T1 डिवाइडेड बाय M2 L2 T2। द पावर वाज A, L1 बाय L2, द पावर वाज B, T1 डिवाइडेड बाय T2, द पावर वाज C। बस ऐसे लिख के छोड़ना। क्लियर? ओके बेटा, M1 M2 दोनों की वैल्यूज अलग होने वाली हैं, ठीक है? L1 L2 दोनों की वैल्यूज अलग होने वाली है, T1 T2 वैल्यूज अलग होने वाली है। कहीं एक बड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, कहीं दूसरा एक छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, ठीक है? क्लियर? अब यहां पर जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तब आपको N2 का वैल्यू मिलेगा। You will get N2 equals to a particular value. ठीक है? Then in the last step, you have to write your answer. कैसे लिखेंगे? बस बेटा इस फॉर्मेट में लिखेंगे। N1 U1 it is written as N2 U2। N1 पहले गिवन था, U1 गिवन था, N2 यहां पर मिल गया ये वाली कैलकुलेशन करके, U2 पहले बताया गया था, ठीक है? इसे कॉपी करें, फिर मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। चलिए मैं 2 इलस्ट्रेशंस दूंगा आपको, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम्स में आएंगी। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्स में आएंगी। दे कैन बी ऑफ 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। कॉपी कर लें आप इसे। डन? इस अलॉरिथम को फॉलो करेंगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन को एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में है। कन्वर्ट a force of 10 Newton into dynes. Convert a force of 10 Newton into dynes. अब बेटा ये न्यूटन क्या होता है? स्टूडेंट्स शायद क्लास 9th में आपने पढ़ा था, पक्का पढ़ा था आपने, शायद याद ना हो। न्यूटन ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, और डाइन CGS यूनिट होता है फोर्स का। क्लियर?
तो स्टूडेंट्स, जब आपको बोला गया कि आपने 10 न्यूटन को टाइम्स में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज SI, द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट इज CGS. दैट इज हियर टू मेक अ कैलकुलेशन फ्रॉम SI टू CGS, मतलब बड़े से छोटे में जाना. क्लियर हो गई बात? ओके. तो जैसे मैंने यहां पे मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, कन्वर्ट अ फोर्स, मैंने तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिख दिया. हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम ना लिखे, सीधा बोले कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू टाइम्स. तो आपने यूनिट से पहचानना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी. समझ आ गई बात? ओके. अब देखिए कैसे करना. नाउ आवर स्टेप 1 वाज यू टू राइट आउट द डायमेंशन फॉर्मूला. सबसे पहले सिंबल लिखें. लेट अस सपोज से कैपिटल F is the symbol which I am using for force and its dimensional formula is MLT minus 2. Got it? Now, step second, I have to identify N1, U1 and U2. Now from the question, this N1 is 10, it is the numerical value. U1 is, बेटा न्यूटन नहीं लिखना है, कैसे लिखना था सिखाया था मैंने. You are going to say it is M1, L1, T1, power is minus. Dimension सेम रहेंगे, सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम में 1 1 1 करके लिखना है. ठीक है. अब देखिए, SI में मास को मेजर करना था किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करना था मीटर में, टाइम को मेजर करना है सेकंड्स में. तो आपने फंडामेंटल यूनिट्स का वैल्यू लिखना है. M1 इज 1 किलोग्राम, L1 इज 1 मीटर, T1 इज 1 सेकेंड. समझ आ गई बात? पता लग गया कैसे करना. Then U2 is written as M2 L2 T2 power is minus 2. बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम को डिफरेंट किया, डायमेंशन सेम रखी. अब बेटा डाइन CGS यूनिट होता है फोर्स का. ठीक है, डाइन CGS यूनिट होता है फोर्स का. क्लियर हो गई बात? तो इन द CGS सिस्टम मास को मेजर किया था ग्राम में, सो M2 इज रिटन एज 1 ग्राम. लेंथ को मेजर किया था सेंटीमीटर में, सो L2 इज 1 सेंटीमीटर. टाइम को मेजर किया था सेकंड में, सो T2 इज 1 सेकंड. गॉट इट? सिंपल सी बात है, समझ आ गई? कॉपी कर ले, इसको कॉपी करें क्योंकि मुझे मिटाना है. Done? Now, step 1 done. Step 2 का आइडिया मिल गया. अब बात करते हैं स्टेप 3 की. What was step 3? N1 U1 was written as, say, N2 U2. N1 U1 was written as N2 U2. कैलकुलेट करना था N2 को. Thus N2 was N1 U1 by U2. लिखना कैसे है? N1 into say M1 divided by M2, L1 divided by L2, T1 divided by T2. The power is minus. Done? Now we have to just write out the values. N2 is written as, बेटा N1 का वैल्यू कितना था? 10 था. M1 क्या था? 1 किलोग्राम था. M2 कितना था? 1 ग्राम था. L1 1 मीटर था. L2 1 सेंटीमीटर है. T1 1 सेकेंड था. T2 भी 1 सेकेंड है. बेटा बात समझ आ गई? अब यहां तक पहुंचने के बाद, बस ये लिखने के बाद अब क्या करना है? ध्यान से सुनिए मेरी बात. आपने हमेशा हायर यूनिट्स को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है. बड़े से छोटे में कन्वर्जन करनी आसान होती है. ठीक है, देखिए कैसे. This N2 is written as 10. 1 kilogram is 1000 ग्राम. बेटा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं?
1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम एज इट इज, 1 किलोग्राम को सिर्फ 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया और 1 ग्राम को एज इट इज लिख लिया। 1 मीटर इट इज 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर 1 सेकेंड divided by again 1 second, power is minus। समझ आ गई बेटा बात? ओके, क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, ये वाला स्टेप करने पर बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इसको तो छोड़ दे बेटा, यूनिट्स आपके सेम हो गए हैं, या तो पहले से सेम थे, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ यूनिट को कैंसिल कर देना। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो क्या बचता है? अब याद रखें, हमारे पास कैलकुलेशन करने पर सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं लिखना है, क्योंकि सारे यूनिट्स देखिए कैंसिल हो गए। नाउ दिस n2 इज रिटन एज, चलिए मैं एक काम करता हूं, ये कॉपी कर ले, यहां मैं मिटा देता हूं इसको। दिस n2 इज रिटन एज बेटा ये वाला 10 मल्टीप्लाइड विद 1000, बेटा ये वाला 1000 मल्टीप्लाइड विद 100, ये वाला 100। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू पावर -2, बेटा 1 का पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो आता तो 1 है, सो इनटू 1 लिखना है लिख ले, नहीं लिखना छोड़ दे। अब टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 1 3 4 and 2 5, so n2 is written as 10 raised to power 5। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? अब बेटा लास्ट स्टेप आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है? 10 न्यूटन is written as 10 raised to power 5 डाइन। सिंपल सा आंसर आ गया। बात समझ आई? तो यहां से कैलकुलेशन से क्या मिला? एक कन्वर्जन दे रहा हूं, आगे जब कभी फिजिक्स की आप बात करेंगे, पूरी 11th में पूरी 12th में जहां कहीं भी कन्वर्जन्स की बात होगी आप सीधा यूज कर सकते हैं, तो नोट कर लें, याद रखें इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, एक कैलकुलेशन में एरर हो गया है। 3 into 5 and 1 6, टोटल जो पार है दैट इज 6, टोटल जो पार है दैट इज 6। क्लियर? ये हल्का सा एरर था, ठीक कर ले उसको। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या पता लगता है? यहां से पता लगता है 1 न्यूटन इज 10 raised to power 5 डाइन। 1 न्यूटन कितना होता है? 10 raised to power 5 डाइन होता है। समझ आई ये बात? तो स्टूडेंट्स इसको याद रखना है। स्टूडेंट्स सिर्फ दो ही ऐसे यूनिट्स हैं जिनके अंदर स्पेशल नाम यूज किए जाते हैं, जैसे फोर्स के लिए एसआई में न्यूटन यूज किया जाता है, सीजीएस में फोर्स के लिए डाइन यूज किया जाता है, तो मैं वो दोनों ही कंसिडर कर रहा हूं। एनर्जी के लिए एसआई में जूल यूज किया जाता है, सीजीएस में स्टूडेंट्स जूल नहीं यूज करते, अर्ग यूज करते हैं, ERG अर्ग। ठीक है, ठीक है, कुछ इसको प्रोनाउंस करते हैं अर्ज में, ठीक है, अर्ज बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकंड इलस्ट्रेशन, सेकंड क्वेश्चन वो भी मैं कर रहा हूं आपके लिए, फिर से एग्जाम्स में इन दोनों में से कोई एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। और स्टूडेंट्स ये आज ही क्लास में हमारा डायमेंशंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एरर्स पे जाएंगे, एरर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट 100 joules into work। क्लियर? फिर से स्टूडेंट्स एक स्टेप वाइज अप्रोच। In the step 1 I will write out the dimensional formula। अब ध्यान से देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैंने नाम नहीं लिखा,
आपको बता दिया मैंने, जूल एसआई यूनिट होता है एनर्जी का, वर्क का, ठीक है, क्लियर। तो सिंबल में आप एनर्जी लिखें, वर्क लिखें, डायमेंशन फॉर्मूला तो एक ही है। लेट अस सपोज दिस W एज अ सिंबल फॉर वर्क मैं यूज कर रहा हूं, एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज ml2 t माइनस। स्टेप 1 कंप्लीट। नाउ द स्टेप सेकंड, N1 ध्यान से देखिए, इट इज 100। U1 कैसे लिखना है, जैसे ही बताया था, फंडामेंटल यूनिट डिफर करनी है बस। M1 L1 T1 डायमेंशन सेम रहेगी, L का डायमेंशन 2 है और T का डायमेंशन -2 है, ठीक है। अब बेटा जूल एसआई यूनिट होता है एनर्जी का, सो M1 इज रिटन एज 1 किलोग्राम। 1 करके लिखना है, हमेशा 1 करके लिखना है। अगर स्टूडेंट्स जैसे एसआई और सीजीएस के अलावा अगर कोई और सिस्टम यूज करता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उस क्वेश्चन में जो डिफाइंड सिस्टम होगा उसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास का वैल्यू होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास का वैल्यू होगा। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम की वैल्यूज दे, ठीक है, आपने वो वैल्यूज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, कहता है कि एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम अ सिस्टम, एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम अ सिस्टम इन विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज 10 किलोग्राम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 किलोग्राम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। तो यहां पर हमने एक नया सिस्टम डिजाइन कर लिया। तो M1 का वैल्यू जो दिया 10 किलोग्राम वो लिखना है, यहां पे 1 किलोग्राम की जगह 1 नहीं लिखेंगे, 10 किलोग्राम। लेंथ का वैल्यू दिया था 5 मीटर, तो L1 का वैल्यू 5 मीटर लिखेंगे, T1 का वैल्यू 1 मिनट लिखेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। खास ध्यान रखना है, कोई अननोन सिस्टम होगा, डिजाइन सिस्टम होगा, नया सिस्टम होगा, तो उसे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज देगा, जो वैल्यू दे वो लिखनी है। अगर सीधा सीधा SI और CGS की बात करें तो 1 1 करके लिखना है, से M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, ठीक है। CGS में 1 मास का 1 ग्राम, लेंथ का 1 सेंटीमीटर, टाइम का 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। L1 is 1 meter, T1 is 1 second, got it? U2 is written as M2 L2 T2 power is 2 and power is -2. M2 is written as say 1 gram, L2 is written as say 1 centimeter, and T2 is written as say 1 second. ओके बेटा, बात समझ आ गई। स्टेप थर्ड की बात करते हैं, स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में N1 U1 was equals to N2 U2, कैलकुलेट करना है N2, so N2 is written as N1 into U1 by U2। ओके, कॉपी करें, कॉपी करें इसको। Yes, one's done. Okay, now कैलकुलेशंस करते हैं। N2 is written as say N1 into U1 by U2, ऑलरेडी कर लिया था मैंने। N2 is written as say N1 into M1 divided by M2, L1 divided by L2, T1 divided by T2, power is 2 and power is -2. Place the values. So this N2 is written as N1 was 100, M1 was 1 kilogram and M2 was 1 gram, L1 was 1 meter and L2 was 1 centimeter, T1 was 1 second and T2 was again 1 second. Okay, now you have to just do the conversion of the different system of units or the different units. So N2 is written as say 100,
say 1000 gram divided by 1 gram, say 100 centimeter divided by 1 centimeter, 1 second divided by say 1 second. ओके, अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूनिट सेम हो गए हैं, कैंसिल कर लें. So what we are left with? We are left with the center is equals to ये वाला 100, ये वाला 1000, ये वाला 100 का स्क्वायर. पार का ध्यान रखें, यहां पर मल्टीप्लाइड विद 1 का पार -2 है, 1 आएगा. लिखना है लिख ले, नहीं लिखना छोड़ दें. चलिए आपकी बारी, नहीं लिखते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या मिलता है. Now, this N2 is written as, say, it is 100 into say 1000 into say 100 into say 100. 100 का स्क्वायर था, उसको मैंने ऐसे लिख लिया है. टोटल जीरोस काउंट करते हैं. 2 to 4, 4 to 6, 6 and 3, 9. So N2 comes out to be 10 raised to power 9. ओके, नोट कर लिया होगा. अब आंसर लिखना है. आंसर कैसे लिखेंगे? 100 जूल इज रिटन एज 10 रेज टू पावर 9 अर्ग. क्लियर? ये आंसर है. सो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2. फिर से एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट दे रहा हूं, याद रखें. जूल बड़े वाला यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है, जैसे किलोग्राम बड़ा होता है. 1 जूल इज 10 रेज टू पावर 7 अर्ग. 1 जूल इज 10 रेज टू पावर 7 अर्ग. समझ आ गई बात? नोट कर ले इसको, फटाफट नोट करिए, कॉपी करिए. चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं. अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, बेटा हम एक ऐसे यूनिट की बात करेंगे, एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे जो कि एक डिजाइंड सिस्टम होने वाला है. क्या होने वाला है? डिजाइंड सिस्टम ऑफ यूनिट होने वाला है. ओके, तो लेट अस सपोज से वी हैव टू कन्वर्ट अ फोर्स ऑफ से 10 न्यूटन इनटू अनदर सिस्टम व्हिच इज अ डिजाइंड सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड. फिर कैलकुलेशंस देखते हैं. देखिए, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन थर्ड, कन्वर्ट 10 न्यूटन into the new system of unit in which the fundamental unit of mass, length and time are say 10 kilogram, 5 meter and 20 second respectively. अब ध्यान से देखिए बेटा, फोर्स है 10 न्यूटन का, तो न्यूटन हो गया ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट. एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करनी है जिसके अंदर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज मैंने बता दी हैं. ठीक है, तो यहां पे N1 तो वैसे ही लेंगे, M1 L1 T1. M1 SI यूनिट है तो 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड. अब क्योंकि सेकेंड सिस्टम तो डिजाइंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, जब भी डिजाइंड होगा तो उसके अंदर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज बताई जाएंगी आपको, जैसे मैंने यहां पे बताई है. मास का 10 किलोग्राम लेना है, लेंथ का 5 मीटर लेना है और टाइम का 20 सेकेंड लेना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. Step 1, we are talking about 10 Newton. 10 Newton is nothing but a force. So force F is written as say mLT minus 2. Okay. The step second, N1 is written as say 10. And N2 we have to calculate, we don't know.
U1 को लिखेंगे M1 L1 T1 पावर इज -2। बेटा फंडामेंटल यूनिट्स को कॉपी करेंगे। M1 is written as 1 kilogram, L1 is written as 1 meter, and T1 is written as 1 second. U2 M2 L2 T2 पावर इज -2। अब ध्यान से देखिए U2 में, U2 नया सिस्टम है, सो दिस M2 is written as 10 किलोग्राम। बेटा जो भी दे आप इसको SI नहीं बोलेंगे। L2 is 5 meter and T2 is 20 seconds। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? Now we have to do the calculations. Step third की बात करते हैं। In the step third, N1 U1 is written as N2 U2. This N2 is written as N1 into U1 by U2। ठीक है, अब बेटा U1 और U2 की वैल्यूज लगाएंगे। This N2 is written as N1 into M1 divided by M2, L1 divided by L2, T1 divided by T2 पावर इज -2। ठीक है, समझ आया? चलिए वैल्यूज डालते हैं। N2 is written as 10, ओके। M1 का वैल्यू लगा लेते हैं, इट इज 1 किलोग्राम। M2 का वैल्यू लगाते हैं, इट इज 10 किलोग्राम। L1 का वैल्यू 1 मीटर, L2 का वैल्यू 5 मीटर, T1 का वैल्यू 1 सेकेंड, T2 का वैल्यू 20 सेकेंड पावर इज -2। ओके, अब देखिए यूनिट सेम है, सीधी सीधी कैंसिलेशन हो गई। सो N2 is written as 10 मल्टीप्लाइड विद, यहां पर 1/10 मल्टीप्लाइड विद 1/5 मल्टीप्लाइड विद 1/20 होल पावर -2। समझ आइए सिंपल सी बात। सो दिस N2 is written as 10 multiplied with 1/10 multiplied with 1/5। बेटा 1/20 raised to power -2, it can be written as 20 raised to power 2। ओके, 1/20 raised to power -2, it can be written as 20 raised to power 2। बेटा 10 से सीधा सीधा 10 कैंसिल हो गया, and we are left with this N2 is written as 1/5 into 20 into 20। 20 के स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे आप, 20 into 20, 5 4 20। so N2 comes out to be total 80। N2 is equals to 80। अब देखिए आंसर कैसे लिखना है, अब देखिए आंसर कैसे लिखना है। In the answer 10 Newton is equals to 80 न्यू यूनिट्स, ऐसे लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बेटा नया यूनिट तो डिजाइन यूनिट था, डिजाइन सिस्टम ऑफ यूनिट था, पता नहीं है क्या था। ठीक है, पहला यूनिट जैसे SI था, यूनिट का नाम मालूम था न्यूटन है, नए सिस्टम में यूनिट का नाम नहीं मालूम होता, तो यहां पे क्या लिखा है, न्यू यूनिट्स। सिंपल सी बात समझ आ गई? ओके, नोट कर लें इसको। एंड इट इज ऑल फॉर टुडे। डायमेंशंस हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स विद यू। ओके, इट इज ऑल फॉर टुडे।